Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up SCMPE theory topic, which is cost of quality. So let's start with the topic. Cost of quality is given in chapter number 2, Modern Business Environment. This is page number 2.3 of the module 1 of SCMPE. In case you have that, you can open that up, or you can just see the screen of your mobile phone or the laptop to cover up this topic with me. Okay, so let's start. Cost of quality. Cost of quality, what does it mean? First of all, the meaning of cost of quality means the cost which you are incurring to improve the quality or to maintain the quality of the product or service whichever you are providing. So from where did this concept come, that we need to know, and what are the costs of quality that we need to understand. So let's start with it one by one. We'll study from the study material line by line so that we don't miss out on any of the sentences or the lines. So the cost of quality concept has been around for many years. Dr. Joseph M. Juran in 1951 in his Quality Control Handbook included a section on cost of quality. Mr. Philip B. Crosby in his book Quality is Free has popularized the cost of quality concept. The cost of quality का concept कहाँ से आया है? From these two people who have included this topic in their books and they have popularized this particular topic. Quality is concerned with conformance to specification, ability to satisfy the customer expectations and value for money. The customer is paying you some money and he expects value for that money which he is paying. So if he is paying money to buy a product or service, he will definitely expect that the product or service which he is going to get is of the speciality or is having those specifications which the customer is expecting from that. So that is what is the meaning of conformance to the specification. That means that the specification which the customer was assuming that product should provide that specification to him or her. So conformance to specification means conforming the specification which the customer was expecting, the ability to satisfy the customer's expectations and the value for money. Recognizing the importance of cost of quality is important in terms of continuous improvement process. So आपको cost of quality की importance कैसे पता चलेगी? आप अगर continuous improvement process में involved हो, then only you will be able to improve or you will be able to recognize the importance of cost of quality. The cost of control, conformance and the cost of failure of control या non-conformance is the quantitative measure of cost of quality. So क्या cost लग रही है? अब कुछ चीज़ों की किसी चीज़ को मेजर करना है इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, तो क्वांटिटेटिव मेजर में अगर आप क्वांटिटेटिव टर्म में उसको मेजर कर पा रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी को किसी क्वांटिटेटिव चीज़ में कन्वर्ट करके मेजर करना, सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कॉन्फॉर्मेंस एंड द कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, दैट इज़ नॉन कन्फॉर्मेंस. मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका फेलियर हो गया. फेलियर हो जाना मतलब नॉन कॉन्फॉर्मेंस. अगर आपने कंट्रोल कर लिया दैट मीन्स कॉन्फॉर्मेंस. इफ़ यू वर नॉट एबल टू कंट्रोल देन दैट मीन्स नॉन कॉन्फॉर्मेंस. सो द कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस एंड नॉन कॉन्फॉर्मेंस बोथ, कि आप कर पाए और नहीं कर पाए, दोनों की कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बनती है. क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है ना आपके सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स भी हों और आपके फेलियर अटैम्प्ट्स भी हों. सो दोनों की ही उस क्वालिटी को लेकर आने के लिए आपके ऊपर दोनों ही कॉस्ट लगी हैं. आपने दोनों ही चीज़ों में एंगेज हुए हो, आप दोनों का खर्चा किया है, तभी दैट इज़ वाई यू आर एबल टू अचीव द क्वालिटी दैट यू वर एस्पायरिंग फॉर. सो इट इज़ द सम ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रिवेंशन and detection of the defects and the costs incurred due to occurrences of defects. So ये सम हो जाएगा सभी चीज़ों का, उनका भी जो कन्फॉर्मेंस कॉस्ट थी और जो नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट थी दोनों का. सो कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कौन सी होती हैं? तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस होती हैं प्रिवेंटिव
मेंटेनेंस एंड द अप्रेजल कॉस्ट. आपने नाम सुने हुए होंगे. हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. फर्स्ट वन इज़ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सेकेंड वन इज़ द अप्रेजल कॉस्ट, थर्ड इज़ द एक्सटर्नल फेलियर एंड द इंटरनल फेलियर. तो एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर्स है ना, फेलियर से क्या पता चल रहा है, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है. कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस मीन्स फेलियर, विच मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर्स तो आपके कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस हो गए. वहीं अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और अप्रेजल कॉस्ट की बात करूँ तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस हो गए. तो किसी चीज़ को करना, सक्सेसफुली करना इज़ द कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस. नहीं कर पाना, उसमें फेल हो जाना, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस. सो फेलियर वर्ड से आपको इंडिकेशन मिल रहा है इस चीज़ का, दैट दीज आर द कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस एंड वेयर एज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड अप्रेजल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस. राइट. So it is the sum of the cost related to the prevention and detection of defects. आप प्रिवेंट करने की भी कोशिश करो कि डिफेक्ट्स अगर हो ही ना, और आप एक तरीके से उनको फिर अगर डिफेक्ट्स हो गए हैं तो उनको डिटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो. सो बोथ द थिंग्स विल बी एडेड टू द कॉस्ट टू गेट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. ओके, सो व्यूज़ रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या क्या है. In the past, it was assumed that increased quality is accompanied by increased cost. Higher quality means higher cost. पहले ऐसा माना जाता था कि क्वालिटी तभी आ सकती है जब आपने कॉस्ट ज़्यादा इनकर किया हो, अदरवाइज नहीं आ सकती. सो ऐसा अज्यूम किया जाता था. Today the view is among practitioners. Today the view of quality cost among the practitioners seems fall into 3 categories. 3 categories में आजकल के practitioners के हिसाब से it is divided into 3 categories, or it falls into 3 categories. What are these 3 categories? First one is the higher quality means higher cost. जिनके लिए ज़्यादा क्वालिटी मतलब तभी ज़्यादा क्वालिटी होगी जब ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होगी. सेकेंड वन इज़ द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी. क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जितनी कॉस्ट लगती उससे ज़्यादा मैंने सेविंग्स कर ली हैं, उसको वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. थर्ड वन इज़ द क्वालिटी कॉस्ट्स आर दोज इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ दोज दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ द प्रोडक्ट वॉज बिल्ट और सर्विस परफॉर्म्ड एग्जैक्टली राइट द फर्स्ट टाइम. कुछ के लिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मतलब वो कि एक ही बारी में काम अच्छे से होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट आपका प्रोडक्ट या सर्विस निकल के आना चाहिए जैसे वो होना चाहिए था, उस पर कोई भी रीवर्क कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. सो कुछ लोगों के लिए क्वालिटी का मतलब वो होता है, कुछ लोगों के लिए क्वालिटी का मतलब होता है ज़्यादा कॉस्ट इनकर करो ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी, और कुछ लोगों के लिए ये होता है कि अगर मैंने कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कॉस्ट लगाने से ज़्यादा अगर मैंने सेविंग्स कर ली हैं तो दैट रिजल्टेंट सेविंग्स आर दी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. सो लेट्स कवर दीज वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ दी हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट. Quality attributes such as performance and features cost more in terms of labor, material, design and other costly resources. So जैसे कि आपके हो सकते हैं लेबर की टर्म्स में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मटेरियल बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, डिज़ाइन एंड अदर कॉस्टली रिसोर्सेज. The additional benefits which are gained from improved quality do not compensate for the additional expenses. So the additional benefits जो आपको मिल रहे हैं because of the improved quality वो actual में आपके additional expenses को compensate नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि cost बढ़ रही है. cost बढ़ रही है इसका मतलब है quality ज़्यादा है तभी, क्योंकि cost ज़्यादा है. तो ऐसा नहीं है कि जो आपके benefits आपको मिल रहे हैं that is more और वो compensate कर पा रहे हैं उन additional expenses को, ऐसा कुछ नहीं है. The resultant savings are greater than the cost of improving quality. Being promoted this view, which is still widely accepted in Japan, the savings result from less rework, scrap, and other direct expenses related to defects. Japanese firms made continuous improvements using this philosophy. तो जो जापानीज़ हैं उनके हिसाब से this is what is being promoted over there. क्या Deming promoted this view. Deming, not Deming, sorry. Deming promoted this view. Deming ने promote किया था ये वाला view. क्या कि जो savings हैं from less rework, scrap और other direct expenses related to defects, ये सब को बचाने से आपकी cost of quality यही होती है. Actually में अगर आपने rework कम करने की ज़रूरत पड़ रही है ना तो that is a good indicator. That is more beneficial for you. That should be the cost of quality. Why? Because you are able to reduce your cost by not making mistakes.
सो यू आर नॉट डूइंग द रीवर्क, स्क्रैप ज़्यादा नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स की वजह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नहीं हो रहे हैं. जापानीज फर्म्स मेड कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट्स दिस यूजिंग दिस फिलॉसफी. उन्होंने इम्प्रूव किस तरीके से किया? बिकॉज ऑफ दिस फिलॉसफी कि रीवर्क ना करना पड़े, स्क्रैप ज़्यादा ना निकालना पड़े और डिफेक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा ना इनकर करना पड़े. दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट और दिस कैन ऑल्सो हेल्प अ फर्म टू कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. Quality costs are those incurred in excess of those that would have been incurred if product was built or service performed exactly right the first time. This view is held by adherents of the TQM philosophy. Here, not only direct costs are included, but also those resulting from the loss of customers, loss in the market share, and many hidden costs and foregone opportunities not identified by the modern cost accounting systems. देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में कुछ गलती हो गई, आपने कस्टमर को बेच दिया था, ऑलरेडी सेल कर चुके थे, कस्टमर ने आपको वापस किया, कस्टमर को आप वो रिपेयर करके दे रहे हो फिर से, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आपने तो ठीक करके दे दिया ना, प्रोडक्ट तो डिलीवर हो गया, मेरे को 10,000 यूनिट का टारगेट था, मैंने 10,000 यूनिट्स बेच दिए, बट क्या आपने एक्चुअल में अच्छे से काम किया? नहीं. आपने ये रीवर्क वाले काम करने की वजह से या फिर स्पेसिफिकेशन लॉसेस की वजह से आपने क्या किया? आपके कस्टमर्स लूज आउट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो. तो दैट इज़ वाई आपकी जो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की मिस्टेक्स की वजह से, हैबिट्स की वजह से आपकी जो मार्केट शेयर है उसका लॉस हो सकता है. आपके जो कस्टमर्स हैं जो पहले से आपसे प्रोडक्ट्स खरीदते थे वो हो सकता है बंद कर दें, उनको कोई और सब्सटीट्यूट मिल जाए. बाय बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग देम नॉट अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट दैन योर कॉम्पिटिटर्स. सो इसीलिए यहाँ पर फोकस किया गया है कि क्वालिटी कॉस्ट वो होती हैं कि ऐसा कुछ करो जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स पहली बार में ही सही बन के निकलें. सही नहीं बन रहे तो इसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ कस्टमर्स होगा, लॉस ऑफ मार्केट शेयर होगा और काफ़ी सारी और भी कॉस्ट हो सकती हैं, या काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो आपके हाथ से निकल जाएं, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई भी ना कर पाओ. तो वो सारी कॉस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा कि आपने कितने मार्केट शेयर को लूज़ कर दिया, कितने कस्टमर्स को लूज़ कर दिया, किसकी वजह से, जिसकी वजह से आपका कितना कंट्रीब्यूशन लूज़ हो गया. सो ये भी कुछ व्यू में आता है कि ये भी एक हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है. अगर आप इसको इम्प्रूव कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी टू योर कस्टमर्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काफ़ी यूज़ होता है, वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से कंपोनेंट में जानी चाहिए पर्टिकुलर कॉस्ट. तो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि किस में कौन सी वाली कॉस्ट आनी चाहिए. प्रिवेंटिव में आएगी, इंटरनल फेलियर में आएगी, अप्रेजल कॉस्ट में आएगी, एक्सटर्नल फेलियर में आएगी. तो अगर आपको इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So this is important from the point of view of theory as well as from the practical point of view. Okay, so components of cost of quality. Mr. Philip B. Crosby in his book Quality is Free refer to the cost of quality costs in two broad categories, namely price of conformance and price of non-conformance. These two can be bifurcated further into prevention and appraisal costs and internal and external failure costs. तो फिलिप बी क्रॉस्बी ने अपनी बुक में क्या बताया था? सिर्फ दो टाइप की कॉस्ट बता दी थी, प्राइस ऑफ कॉन्फॉर्मेंस एंड प्राइस ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस. उसको फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया कि कॉन्फॉर्मेंस में वो दो आ जाएंगी जो आपकी प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट होती हैं, और नॉन कॉन्फॉर्मेंस में मतलब फेलियर वाली जो होती हैं दैट विल इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. Hence, COQ is often referred to as PAF model, प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर. क्योंकि दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर्स हैं तो फेलियर का आप एक अलग ग्रुप बना सकते हो, उसके अंदर आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल आ जाएंगे. इसीलिए COQ को भी बहुत पॉपुलरली बोला जाता है PAF मॉडल, विच मीन्स प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल. In other words, price of conformance is known as the cost of good quality and price of non-conformance is often termed as cost of poor quality. Why? Because cost of poor quality क्यों बोला गया? क्योंकि आपके जो फेलियर्स हो रहे हैं ना वो नॉन कॉन्फॉर्मेंस कॉस्ट के अंदर हो रहे हैं. अब फेलियर हो रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो इज इट अ गुड सिंबल कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो? नहीं. तो इसीलिए उसको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ग्रुप में डाला हुआ है. और अगर मैं वहीं प्राइस ऑफ कॉन्फॉर्मेंस की बात करूँ तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि आप गलती होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो. ओके,
So cost of quality is divided into two parts, cost of poor quality and cost of good quality. When I say poor quality includes two costs or two types of costs. First one is the internal failure cost and second one is the external failure cost. वहीं पर अगर मैं cost of good quality की बात करूँ तो it is further divided into two parts, appraisal cost and the prevention cost. The cost of good quality means the cost of conformance and cost of poor quality means the cost of non-conformance. Okay. Now, prevention costs. The cost incurred for preventing the poor quality of the products and services may be termed as the prevention cost. कि आपकी poor quality के product services ना बन जाएं, इसीलिए जो हम cost incur कर रहे हैं उसको prevention बोल रहे हैं. By prevention because we are preventing our product from being defective, from being of poor quality. So that is why we are preventing it. That is why the cost incurred for this purpose is known as prevention cost. These costs are incurred to avoid the quality problems. They are planned and incurred before actual operation and are associated with the design, implementation and maintenance of the quality management system. Prevention costs try to keep the failure and appraisal cost to a minimum. अगर आप prevention में अच्छे पैसे लगाते हो, अच्छी cost prevention में incur करते हो तो इसकी वजह से failure cost होने के chances कम हो जाते हैं और appraisal cost करने के भी कम ज़रूरत पड़ती है. Why? Because you are incurring a huge expenditure on the prevention cost which will help you to prevent the other cost to be incurred. For example, if I say prevention cost में क्या क्या आ जाते हैं, तो let's read out the examples. First one is the quality planning. Creation of plans for quality, reliability, operations, production and inspection. इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन होगी दैट विल बी ऑफ क्वालिटेटिव नेचर. तो इसीलिए उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो. तो प्लानिंग इज़ अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट. वाई? बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. आप प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हो. Qualitative assurance, quality assurance, creation and maintenance of the quality system. Third one is the supplier evaluation. You are evaluating the supplier beforehand कि वो कैसा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है, रॉ मटेरियल किस टाइप का होगा, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इंस्पेक्शन करके देगा या नहीं देगा. सो दिस इज़ व्हाट प्रिवेंशन, कि आपके पास गलत या फॉल्टी रॉ मटेरियल ना आ जाए और फिर आप उसको प्रोडक्शन में लेकर जाओ, प्रोसेसिंग करो, प्रोसेसिंग का भी खर्चा लगाओ और बाद में पता चले कि आपका रॉ मटेरियल डिफेक्टिव था इसीलिए आपका फिनिश प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव बना है. तो इसीलिए ये सारे आगे के आपके एक्सपेंसेस को अवॉइड करने के लिए यू आर इवेलुएटिंग द सप्लायर वेदर द सप्लायर इज़ गुड रेटेड एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग यू गुड क्वालिटी मटीरियल. नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट रिव्यू. व्हेनेवर यू आर परचेजिंग or you are producing a new product, you should review the product कि कैसा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले खुद टेस्ट करके देखना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि क्या वो वैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पा रहा है जैसे आप लोग उसके बता रहे हो. एरर प्रूफिंग, आपको एरर प्रूफिंग करनी चाहिए. मतलब यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू मेक योर प्रोडक्ट्स एरर प्रूफ, एरर्स के बिना वाले प्रोडक्ट्स. कैपेबिलिटी इवैल्यूएशंस की जो लोग काम कर रहे हैं वेदर दे आर केपेबल और नॉट. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम मीटिंग्स करनी चाहिए जिससे कि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड रहे. आपकी जो भी टीम्स हैं जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं, उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए टाइमली. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स भी इनकर करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करने चाहिए विच विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम्स. आप ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हो जिस दैट विल हेल्प द क्वालिटी फ्रॉम दैट विल हेल्प योर एम्प्लॉयज़ टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स. Cost incurred due to product specification arising may be from incoming materials or intermediate processes. सो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस की वजह से कॉस्ट हो रही है, जैसे कि आपने जो भी मटेरियल आ रहा है या जो आपके प्रोसेसेस हैं उसमें आप एक बारी चेकिंग कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सही है या नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंटिव कॉस्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जांपल्स आप याद नहीं कर सकते क्योंकि देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. आपको कॉन्सेप्ट समझना है. प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब हो गया, या प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब हो गया आप डिफेक्ट होने से रोक रहे हो. तो अगर प्रिवेंशन कॉस्ट अच्छे से इनकर की होगी तो अप्रेजल कॉस्ट और फेलियर कॉस्ट कम से कम हो पाएगी.
अप्रेजल कॉस्ट की बात करते हैं. अप्रेजल कॉस्ट, द नीड ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंश्योर हाई क्वालिटी लेवल इन ऑल स्टेजेस, conformance to quality standards and performance requirement is appraisal cost. So आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट में हर स्टेज पर हाई क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सको, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सको, राइट. और ये जो कॉस्ट होती है ना, ये जो कॉस्ट होती हैं विच आर इनकर्ड टू मेक दी प्रोडक्ट इन कॉन्फॉर्मिटी विद दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस, उसको हम बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट. आप इंश्योर करने की कोशिश करो कि हर एक स्टेज पर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट हो, आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए, जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट से जो एक्सपेक्टेड हैं दैट इट इज़ एबल टू प्रोवाइड. These are the costs which are associated with measuring and monitoring activities related to quality. So इसमें वो वाली costs आती हैं जिसमें आपको measure करना होता है या monitor करना होता है उन activities को जो आपकी quality से related costs हैं. Appraisal cost incurred to determine the degree of conformance to quality requirements, measuring, evaluating or auditing. They are associated with the suppliers and customers evaluation of purchased materials, processes, products and services to ensure that they are as per the specification. So यहाँ पर आप अपने लेवल पर चेक कर रहे हो कि सारी चीज़ें जो कस्टमर को चाहिए वो ही प्रोड्यूस करो और जो आपके सप्लायर ने दी हैं that are as per the specifications. They could include examples. इसके हम पढ़ लेते हैं एक बार ये examples में. First one is the verification, checking of incoming material, process setup and products against agreed specifications. जो prevention था वो काम होने से शुरू होने से पहले आप कर रहे थे. And when I talk about the appraisal cost, काम शुरू हो गया या आप अपने end पर चेक कर रहे हो कि हर एक स्टेज पर क्वालिटी हाई होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए एंड इट शुड मीट आउट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स. सो इसके लिए आप कौन सी कॉस्ट इनकर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन कर रहे हो जो आपका पास मटेरियल आ रहा है फ्रॉम दी सप्लायर, वेदर इट इज़ एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नॉट. यू कैन चेक दैट. आप चेक कर सकते हो कि जिस प्रोसेस के थ्रू अब ये रॉ मटेरियल जाने वाला है, जैसे कि वो फिनिश कुछ बने, क्या वो प्रोसेस का सेटअप अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है. प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज पर दी स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए. क्वालिटी ऑडिट्स करवा सकते हो जैसे कि आपके क्वालिटी सिस्टम की कैसे क्वालिटी सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसकी कॉन्फर्मेशन मिल पाए, आपकी वो फंक्शन सही से कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी कॉन्फर्मेशन मिल पाए. सप्लायर रेटिंग चेक कर सकते हो, आप अपने सप्लायर्स को चेक कर सकते हो, असेस कर सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो ऑफ दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. चेकिंग एंड टेस्टिंग दी परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपने परचेज ऑलरेडी कर लिए हैं उनको चेक करना, टेस्ट करना. परचेज करने से पहले अगर आप सप्लायर का इवैल्यूएशन कर रहे होते तो दैट विल गो टू द प्रिवेंशन कॉस्ट, बट आप यहाँ पर ऑलरेडी परचेज कर चुके हो. नाउ यू आर चेकिंग एंड टेस्टिंग दी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. इन प्रोसेस एंड फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट, आपने अभी प्रोसेस कर दिए हैं प्रोडक्ट्स को, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं या फिर आपने बना दिए हैं. नाउ यू आर फाइनली इंस्पेक्टिंग देम कि कोई भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस डिफेक्टिव ना हो. सो दैट इज़ वाई यू आर डूइंग दी फाइनल इंस्पेक्शन और फाइनल टेस्ट. फील्ड टेस्टिंग, फील्ड पर जाके सारी चीज़ें टेस्ट करना वेदर एवरीथिंग इज़ राइट और नॉट. प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस ऑडिट्स, प्रोडक्ट का ऑडिट, प्रोसेस का ऑडिट, सर्विस का ऑडिट, किसी भी तरह से कहीं पर भी यू आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड कि कहीं पर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. Calibration of measuring and test equipments. You are testing your equipments, you are checking your equipments whether they are working perfectly or not. So these are all the examples of appraisal cost. Appraisal cost काम शुरू होने के बाद हर एक स्टेज पर इंश्योर करना कि सब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए की जाती है. whereas prevention cost is done to prevent the defects, कि कुछ भी गलती ना हो उसको पहले से ही चेक करना काम शुरू होने से पहले. So that comes to the prevention cost and this is the appraisal cost. These are the part of cost of good quality or I should say cost of conformance. Okay. Next is the cost of poor quality जिसमें हमारे पास failure वाली costs आ जाएंगी which are internal costs and the external cost. First one is the internal failure cost. Internal failure cost associated with the defects फाउंड बिफोर द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विस. अभी तक कस्टमर के पास प्रोडक्ट और सर्विस गया नहीं है, मतलब आपकी
कंपनी से बाहर नहीं गया, इंटरनली अभी भी इंटरनल एरिया में ही है. So internal failure cost is associated with those defects which are found before the customer receives the product or service. Internal failure costs are incurred to remedy the defects discovered before the product or service is delivered to the customer. तो अगर आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट और उसके बाद वो आपके पास आया है फॉर द रिपेयर, तो क्या वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आएगा? नहीं. वो वाले इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आते हैं जो अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुए, डिलीवर होने से पहले ही जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं डिफेक्ट्स, उनको आप इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर कवर करते हो. These costs occur when the product is not as per the design quality standards and they are detected before they are transferred to the customer. कस्टमर को ट्रांसफ़र करने से पहले ही आपको डिटेक्ट हो जाते हैं कि ये हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनी है. These are the costs that are caused by the products or services not conforming to the requirements or customer user needs and are found before delivery of products and services to the external customers. देखो बार बार ये चीज़ आ रही है, बिफोर डिलीवरी डिलीवर कर दिया, उसके बाद डिफेक्ट्स को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक करा जा रहा है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट. यहाँ पर आपने अभी तक प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं किया है, उससे पहले आपको कोई भी चीज़ पता चलती है, चाहे फिर कोई डिफेक्ट है, चाहे फिर ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट तो सही है लेकिन नॉट एज पर दी कस्टमर स्पेसिफिकेशन है, तो इस सारे के सारे ये आपके इंटरनल फेलियर का पार्ट बन जाते हैं. Deficiencies are caused by both errors in the product and inefficiencies in the process. हो सकता है प्रोडक्ट में कोई एरर हो चुकी है, इस वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर हो सकता है आपके जो प्रोसेसेस थे वो इनएफिशिएंट थे जिसकी वजह से डिफेक्ट अराइज हो गया. सो बोथ ऑफ देम कैन बी दी रीजंस. नाउ द एग्जांपल्स कुड बी फर्स्ट वन वेस्ट. So waste occurs when unnecessary work is done or holding of stock as a result of errors, poor organization और communication. तो वेस्ट का मतलब क्या होता है? बेकार की चीज़ पड़ी हुई है, नॉट रिक्वायर्ड आइटम है. तो अगर आपका कोई भी स्टॉक है जो आपने क्या किया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से आप उसको स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हो, तो होल्ड करके रख रहे हो दैट इज़ अ वेस्ट, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है. सो कोई भी गलत काम हो जाता है या फिर अननेसेसरीली कोई चीज़ हो जाती है, दैट इज़ नोन एज वेस्ट. सो वेस्ट अकर्स व्हेन अननेसेसरी वर्क इज़ डन. गलत काम कर दिया, ज़रूरत नहीं थी फिर भी कर दिया, या फिर आप कोई ऐसा स्टॉक होल्ड कर रहे हो विच इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स, आपके पास ही रखा हुआ है, आपकी कुछ गलती हो गई थी, इट इज़ ऑफ बिकॉज ऑफ द पुअर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ विच वेस्ट इज़ देयर इन योर एंटिटी. सेकेंड वन इज़ दी स्क्रैप. स्क्रैप डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, पता चल रहा है नाम से ही. मटीरियल विच के नॉट बी रिपेयर्ड, यूज्ड और सोल्ड. ऐसा स्क्रैप है जिस पर रीवर्क करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्क्रैप है, कबाड़ है. ओके. थर्ड, रीवर्क और रेक्टिफिकेशन. रीवर्क करना, रेक्टिफाई करना when the work needs to be rectified for defective material or errors. So जब भी आपको कोई भी आपने काम किया उसके ऊपर आपको ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज रीवर्क या रेक्टिफिकेशन. कोई चीज़ ऐसी है जिस पर कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, दैट इज़ स्क्रैप. अगर किसी चीज़ पर रीवर्क हो सकता है तो दैट इज़ रीवर्क और रेक्टिफिकेशन. फेलियर एनालिसिस की बात करें तो फेलियर एनालिसिस का मतलब होता है एक्टिविटी विच आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द कॉजेज ऑफ इंटरनल प्रोडक्ट और सर्विस फेलियर. सो आपने फेलियर हो गया, उसकी वजह से आप एनालिसिस करवा रहे हो, किस लिए? कि आपको पता चले कि इंटरनल प्रोडक्ट या सर्विस में किस रीज़न से फेलियर हुआ था. दैट इज़ योर फेलियर एनालिसिस. नेक्स्ट वन इज़ द डीलेज. काम देर से करना, ये अच्छी बात है? नहीं. ये होता किस वजह से? बिकॉज ऑफ द इंटरनल फेलियर्स. अंदर ही इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज डिलेज हो रहे हैं, रीडिज़ाइनिंग करनी पड़ रही है, एक बारी में आपने सही से काम नहीं किया, रीडिज़ाइनिंग. शॉर्टेजेस हो रही हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्टेजेस हो रहे हैं. इंटरनल फेलियर, आपको पहले से ही प्लान करके चलना चाहिए था, आपने नहीं किया, इंटरनल फेलियर. रीटेस्टिंग, डाउनग्रेडिंग, डाउन टाइम हो रहा है, नहीं चल रहा काम, रुक गया है. इसका मतलब क्या है? इंटरनल फेलियर की वजह से रुका है, आपको पहले से देखना चाहिए था. डाउनग्रेडिंग, प्रोडक्ट डाउनग्रेडेड है, नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड्स है, ठीक है. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी काम नहीं हो पाता. अगर आपके पास ऑर्डर 10,000 का एकदम से आ जाए, आप पहले अभी तक 8,000 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आप एकदम से नहीं कर पा रहे, बाय बिकॉज योर फर्म और एंटिटी इज़ नॉट फ्लेक्सिबल टू डू दैट. अडेप्टेबिलिटी नहीं है, एकदम से आप चेंजेस के साथ अडाप्ट नहीं कर पाते, और हमें पता है हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है, तो अडेप्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नहीं हो रही है तो भी प्रॉब्लम की बात है.
एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की बात करें, अभी हमने इंटरनल पढ़ा, एक्सटर्नल से क्या लग रहा है कि जब प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका होगा उसके बाद कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट विल कम अंडर दिस, ऐसा लग रहा है ना नाम से। चलो पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू मिटिगेट द डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बाय द कस्टमर्स। अब मतलब आपकी बाउंड्री से बाहर जा चुका है प्रोडक्ट एंड अब कस्टमर्स आके आपको बता रहे हैं कि इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये डिफेक्ट है। सो दैट मीन्स दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू मिटिगेट, ठीक करना उन डिफेक्ट्स को जो कस्टमर्स ने डिस्कवर करके आपको दिए हैं। These costs occur when products or services that fail to reach design quality standards are not detected until after the transfer to the customer. जब तक आपके पास थे उन डिफेक्ट्स को आप एंटिटी लेवल पर नहीं डिस्कवर कर पाए, वो कस्टमर ने ही बताया है आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी गॉट डिलीवर्ड. After the product or service is delivered and then the defects is found, then it is an external failure. Further, external failure costs are the costs that are caused by deficiencies found after delivery of products and services to external customers, which leads to the customer dissatisfaction. अब कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया और उसके हिसाब से नहीं है, उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, आप खुद ही एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू सोच के देखो, क्या आप सेटिस्फाइड होगे या डिससेटिस्फाइड होगे? ऑब्वियसली यू विल बी डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. सो द रीजंस कुड बी for external failure cost, repairs and servicing of both products that have been returned by the customer and which are serviced at the customer's place. अब कस्टमर की प्लेस पे जाके ठीक कर रहे हो या कस्टमर ने आपको भेज दिया है वो प्रोडक्ट, फिर उसको ठीक कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है दोनों ही आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आएंगे. आप ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है तो वो इंटरनल बाउंड्रीज़ के अंदर है तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में नहीं आएगा. नहीं, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया, अब डिलीवर करने के बाद जो खर्चा हो रहा है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. वारंटी क्लेम्स, फेल्ड प्रोडक्ट्स दैट आर रिप्लेस्ड और सर्विसेज दैट आर रीपरफॉर्म्ड अंडर अ गारंटी. आपने जो प्रोडक्ट बेचा उस पर वारंटी थे, अब वारंटी क्लेम करना कस्टमर के लिए तो सही है कि उसने वारंटी क्लेम कर ली क्योंकि वारंटी पीरियड के अंदर था, बट ये क्या एक अच्छा इंडिकेटर है इस बात का कि आपके प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड कर रहे हो टू द कस्टमर्स? नो. अगर कस्टमर को वारंटी क्लेम करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है, उसको कुछ ना कुछ ठीक होने की ज़रूरत है. सो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ द कस्टमर इज़ क्लेमिंग दी वारंटी, राइट. Complaints, all work and costs associated with handling and servicing the customer's complaint. Now complaints को कस्टमर की complaints आ रही हैं, उसको हैंडल किया जा रहा है, उसके लिए कॉस्ट इनकर हो रही है. सो ये एक्सटर्नल फेलियर है, इंटरनल फेलियर है? ऑब्वियसली एक्सटर्नल फेलियर है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द कस्टमर्स हु आर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड और द सर्विसेज यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. Returns, handling and investigation of the rejected or recalled products including the transport costs. So product आप बेच चुके हो and the product has got rejected and the product has been returned to you. Is this a good sign? No. The cost of this is an external failure because you had already delivered the product and now the product has been returned to you by the customer. सो इसमें रिटर्न करने के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी होंगे कि आपने ट्रांसपोर्ट करवाया होगा, कस्टमर ने आपको अगर वापस भेजा तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गोइंग टू बेयर द डिलीवरी चार्जेस ऑफ द रिटर्न प्रोडक्ट, ही विल डेफिनेटली आस्क यू टू पे फॉर इट. सो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस विल बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. कंप्लेंट्स आना हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. रिपेयरिंग गुड्स एंड रीडूइंग दी सर्विसेज, सो ये भी वही है, अगर आपने कोई काम कर लिया उस पर फिर से काम करना पड़ रहा है बिकॉज कस्टमर वापस लेके आया प्रोडक्ट को, रिपेयर करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, राइट. वारंटीज, लॉसेस ड्यू टू सेल्स रिडक्शंस, एनवायरमेंटल कॉस्ट, सो एनवायरनमेंट को हार्म किया उसकी वजह से कॉस्ट इनकर करनी पड़ी. सो ये इंटरनल फेलियर थोड़ी ना है, ये तो बाहर आपने कुछ गलत किया, दैट इज़ वाई दिस कॉस्ट हैज़ टू बी बोन बाय यू. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. लॉसेस ड्यू टू सेल्स रिडक्शंस, आपकी सेल्स रिड्यूस हो गई, पहले 10,000 बेच पाते थे, आज सिर्फ 5,000 बेच पा रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बिकॉज यू वर नॉट प्रोवाइडिंग द गुड्स एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर्स. दैट इज़ वाई you have incurred these losses and this is why this will be a part of external failure cost.
So the total quality cost is the sum of all these costs, which is the cost of control, that means the prevention cost and the appraisal cost, cost of confirmation, cost of good quality, and whereas there is another cost which is a part of your cost of quality, which is the cost of failure of control, which is also known as cost of non-conformance, cost of poor quality. There are two types of cost under this: internal failure cost and external failure cost. In its simplest form, COQ can be calculated in terms of effort, hours per day. कितने दिन लगाए, कितने आवर्स, इसके हिसाब से आप एफर्ट्स के टर्म में COQ को कैलकुलेट कर सकते हो. अ बेटर अप्रोच विल बी टू कैलकुलेट COQ in terms of money, converting the effort into money and adding the other tangible costs like test, environmental setup. ये सारी कॉस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो. The best approach will be to calculate COQ as a percentage of the total cost. Total cost का कितना percentage आपकी इसी पर खर्चा हो जाता है. This allows for comparison of the COQ across the projects or the companies. To ensure impartiality, an external person, say the accountant, must determine the cost of quality of a product or project rather than a person who is a core member of the project or product team, say someone from the accounts department. Why they are saying so? Because you will not never accept the mistakes or never accept the issues that you have created. Always you will be biased or partial. That is why they are saying you should always pick up some external person to determine the cost of quality, जिससे कि actual में correct figures आपके पास आए. We are not going to read this illustration. Let's come to the next page. Okay, optimal cost of quality. It is generally accepted that an increased expenditure in prevention and appraisal is likely to result in substantial reduction in the failure cost. Why? Because you are already incurring a lot of cost, you are taking a lot of efforts to prevent the defects, and you are doing it at your level best. So this is likely to reduce or substantially reduce the failure cost. Why? Because you are incurring a lot of expenses in the cost of quality. So obviously बात है, poor quality होने के chances कम होंगे, तो उस पर cost लगने के भी chances कम होंगे. Now, because of the trade-off, there may be an optimum operating level in which the combined costs are at a minimum. Hence, it is further argued that striving for zero defects through a program of continuous improvement is not good for the economic interest of the company. So यहाँ पर गलती से टोटल की जगह टूल कॉस्ट आ गए, यहाँ पर टोटल होना चाहिए था. तो टोटल कॉस्ट कर्व आपका ऐसा है, आपकी सी दीज आर योर टू एक्सेस. परसेंटेज डिफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट होनी चाहिए थी, परसेंटेज डिफेक्ट्स, हम डिफेक्ट्स का परसेंटेज निकालते हैं इन कंपैरिजन विद द कॉस्ट. हमने अभी थोड़ी देर पहले ये लाइन रीड करी थी. सो दैट इज़ वाई हेयर इट शुड बी टोटल कॉस्ट एंड इट इज़ द परसेंटेज डिफेक्ट्स. अब यहाँ पर देखो आपका ये टोटल कॉस्ट का कर्व है एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस. अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस बहुत कम है. द रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि अगर आप गुड क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हो तो पुअर क्वालिटी होने के चांसेस कम होंगे तो कॉस्ट भी कम लगेगी. सो दैट इज़ वाई व्हेन द कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज़ अ गुड सिंबल, राइट. Now the case scenario is given, and next we have is the steps of application of PAF model. PAF model हमने अभी पढ़ा, प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल बोला जाता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को. सो लेट्स रीड दिस ऑल्सो. इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स आएंगे टोटल. 5 स्टेप्स कौन से अभी हम देखते हैं. So the prevention, appraisal and failure model is most widely accepted method for measuring and classifying quality costs following this 5-step process. So this is the sequence of the process. First one is gather some basic information about the number of failures in the system. कितने failures होते हैं system के अंदर, उस बारे में information gather करो. Apply some assumptions to the data in order to quantify the data. Assumptions लगाओ और उसको quantify कर पाओ.
चार्ट द डेटा बेस्ड ऑन दी 4 एलिमेंट्स लिस्टेड अबव एंड स्टडी इट, कि किस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से कॉस्ट किस पर्टिकुलर हेड में हमारी कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रही है. एलोकेट द रिसोर्सेज टू कम्बैट दी वीक स्पॉट्स, जहाँ पर आपको वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं आप वहाँ पर अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करो, एलोकेट करो और उसकी मदद से अपने वीक स्पॉट्स को ख़त्म करने की कोशिश करो. डू द स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इवेलुएट योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक आउट व्हाट आर दी रीजंस फॉर योर फेलियर्स, क्यों हो रहा है, आपको डेटा निकालना है. अब इस डेटा के अंदर यू हैव टू क्वान्टिफाई इट, आपको अपने लॉसेस को क्वान्टिफाई करना है, देखना है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहाँ कहाँ पर कितनी इनकर हो रही है. इसके लिए एक चार्ट बना लोगे कि मेरी एक्सटर्नल फेलियर्स की वजह से कितनी है, इंटरनल की वजह से कितनी है, प्रिवेंशन कॉस्ट कितनी हो रही है एंड मेरी अप्रेजल कॉस्ट कितनी हो रही है. इसको 4 हेड्स में ब्रेक किया. नाउ जो आपके वीक हेड्स हैं उनमें देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या करेक्शंस की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है और उसको ठीक करो. और ऐसा नहीं एक बारी कर दिया तो छोड़ दिया, नहीं, आपको इसको बार बार हर बारी करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा, तभी आपके ईजिली हो पाएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टडी द कंक्लूजन पार्ट. Many of the costs of quality are hidden and thus making it difficult to identify by formal measurement systems. The iceberg model is very often used to illustrate this matter. So iceberg model क्यों बोल रहे हैं, इसको पहले इस चीज़ को समझते हैं. iceberg कैसा होता है? iceberg आपको दिखता है पानी के ऊपर से जस्ट आपको थोड़ा सा पार्ट दिखता है, बट एक्चुअल में वो नीचे बहुत ज़्यादा डीप होता है. राइट, तो दिखने में लगता है कि बस इतना सा ऊपर पार्ट आ रहा है, बट एक्चुअल में नीचे बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, कि आपको रिवर्क करना पड़ रहा है, टेस्टिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, वेस्ट निकल रहा है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं, आपको काफ़ी सारी इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है. तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इतनी सी दिख रही हैं. ये सब होने का एक्चुअल में जो रीज़न है वो बहुत सारे रीजंस हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें एज अ रिजल्ट दिख रही हैं, एज अ कंक्लूजन दिख रही हैं. सो आप सिर्फ कंक्लूजन को मत देखो, आप देखो कि ये कंक्लूजन का एक्चुअल रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, कारण क्या है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस. सी, ये आपके जो हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर्स हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऊपर टॉप पर. दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर्स. अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर होने के रीजंस क्या क्या हैं. आप एक्सेसिव ओवर टाइम करवाते हो, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है. दे आर नॉट एबल टू वर्क दैट प्रॉपरली दैट दे यूज्ड टू डू व्हेन दे वर वर्किंग फॉर द यूजुअल नॉर्मल वर्किंग आवर्स. नाउ प्राइसिंग और बिलिंग एरर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर गलती हो रही है, कैसे हमारी रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है. एक्सेसिव एम्प्लॉय फ्लक्चुएशन, आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय का बार बार आना जाना रहता है, तो आपको नया एम्प्लॉय को दोबारा सिखाना पड़ता है, लर्निंग कर्व में इफेक्ट पड़ जाता है उसके. एक्सेसिव फील्ड सर्विस एक्सपेंसेस, प्लानिंग डिलेज, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ फेल्ड प्रोडक्ट, लेट पेपर वर्क कर रहे हो, एक्सेस इन्वेंट्री लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेस इन्वेंट्री. ज़्यादा इन्वेंट्री रखते हो जिसकी वजह से होल्ड करके रख रहे हो और वो ख़राब भी हो जाती है, कई बार डिफेक्टिव हो जाती है. कंप्लेंट हैंडलिंग आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है और आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कस्टमर्स प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, आपका वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और फिर आपका बैड रिव्यू जाता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट नहीं हो पाती. Excessive IT system cost, time with dissatisfied customer, unused capacity, incorrectly completed sales order. So these are the reasons actually for the external and internal failure cost. तो आपको reasons को identify करना है and आप reasons तभी identify कर पाओगे जब आप roots तक जाते हो. तो quality को improve करने के लिए आपको कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ता, आपको जो चीज़ें गलत हो रही हैं बट उसको ठीक करना होता है. आपको लग रहा है कि हमें ये इनको ठीक करने के लिए सारी कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ेगी, नो, आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. अगर आप यहाँ इम्प्रूवमेंट लाओगे तो आपको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये हिडन होता है, ये दिखता नहीं है इसलिए पता नहीं लगता, लेकिन कॉस्ट के रूप में ये वाला चीज़ इनकर हो जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. Only a minority of the costs of poor and good quality is obvious, appear above the surface of the water. The reduction of cost underwater has a huge scope. If we identify and improve these costs, the cost of doing business will significantly reduce. हमें लगता है कि कॉस्ट इनकर करेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट्स आ पाएंगी, नहीं.
अगर हम इनको देख लेना तो वो कॉस्ट इनकर ही ना हो और बहुत ही मिनिमल सी होंगी जो कि ऑब्वियस होती हैं और अनअवॉइडेबल होती हैं. बट अगर हम मोस्टली जो हिडन चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनको इम्प्रूव कर लें तो हमें कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड दी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस वुड बी वेरी लेस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी टॉपिक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. If it was made easy for you and if you enjoyed covering it, please give a big thumbs up to the video and share it with your friends and subscribe to the channel in case you haven't done it yet. Also, we are going to cover up a few case studies more. You can tell me your preference in the comment section below if you want to cover up any particular case study in the next video. Let me know about it. I'll try covering that up. So yeah, that's all for today. Thank you so much for watching, guys. I'll see you in the next video. Take care till then. So yeah, bye bye.